Okay, let me begin by welcoming you guys uh, for extending your wonderful support to this series on social justice. Today, we have with us two speakers. Tanveer Fazal from is one of our own, and Professor Yogendra Yadav from CSDS. May I request Professor Yadav and Tanveer to take their seats, please? Uh, I would like to introduce our first speaker, Professor Yogendra Yadav, who in fact needs no introduction, but I would still like to say a few words about him. Uh, as we know, he's been a very popular psephologist. While growing up, I used to see whenever he appeared on television, and I thought psephology would be a very interesting career because lots of people pay attention to what you predict. But eventually, I had to choose something else. Uh, but anyway, so Professor Yadav has been associated with CSDS since 2004. He's also the founding convener of the Lokniti network and also the founding director of Lokniti, a research program on comparative democracy, which runs at CSDS. I would, with this brief introduction, like to request Professor Yadav to take over to speak. Thank you. Thank you. Delighted to be here. And I should begin by thanking for this mercifully short introduction. वो हिंदुस्तान की रवायत ये है कि हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और ये कहने के बाद 10 मिनट तक उसका बायोडाटा पढ़ा जाता है तो आपने इसे 1 मिनट में रोक दिया, बहुत मेहरबानी. Secondly, when someone who is losing his hair says कि मैं इन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, that makes me acutely conscious of my age. Thanks for reminding this me. I mean, I needed that reminder. Thank you. सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. This institution that I have had the pleasure of knowing for the last 35 years. I entered here in 1981. So it's good 36 years. And I must say I've been somewhat conflicted about how to feel about this institution. कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे बीच में ऐसा भी लगता था कि ये एक और एलीट इंस्टीट्यूशन है, IIMs हैं, IITs हैं, इतना पैसा सरकार की खाते हैं और ये JNU भी उनमें से एक है, इतना पैसा मिलता है इस इंस्टीट्यूशन को. सो मेरे मन में हमेशा एक अंदर द्वंद सा चलता रहता है कि JNU के बारे में ऑकवर्ड महसूस करूं, एम्बैरेस्ड महसूस करूं या प्राउड महसूस करूं. लेकिन जब जब क्राइसिस का मोमेंट आता है, जब जब कुछ ऐसा होता है जो कि गलत है, जब जब हमला होता है, तब तब जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर कम्युनिटी एक साथ खड़े होते हैं, उससे मुझे मेरा सर ऊंचा हो जाता है और मुझे लगता है हाँ, ये इंस्टीट्यूशन अच्छी है. और पिछले साल से जो दौर चल रहा है, February onwards last year, now it's nearly a year, I must say this university has lived up to the best of its tradition and I hope it would better its best. क्योंकि ये जो गोल्डन डेज की जो मिथ है वो चलती रहती है, but it's quite possible that what you are living through right now is the golden age. This university is at its very best when protesting, when standing up to those in power, when saying things which are inconvenient, when raising questions which no one else wants to raise. So I should begin by congratulating all of you for being here,
for staging this protest, for organizing this lecture where you ought not to be organizing lectures. I'm conscious of the fact that I should not be standing where I'm standing, and that you should not be sitting where you're sitting, and congratulations for doing this. वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा nepotism भी कर लूं. I must also use this occasion to congratulate my old friend, my batchmate, Nivedita, who's received more than one explanations, two letters, so 2 badges of honor she's received so far. और मैंने कहा कि अगर मौका मिले और अगर आवाज ये वाइस चांसलर साहब तक पहुंच रही हो, तो मैं इतना बताना चाहता हूं. I've known her now for 36 years. We were actually batchmates in the same center, in the same class. And I want to tell you, I want to tell the Vice Chancellor, you can do whatever. You cannot silence Nivedita Menon. That I can tell you from 36 years of experience. So he's on to a wrong track. I've been asked to speak about UGC autonomy and UGC university autonomy and social justice. I think that's what the topic is. When I read the Hindu today, it says UGX, university autonomy and social justice. And I thought that Printer's Devil has a message. There's certain X factor about UGC these days. Something deeply mysterious. Something that you have to really discover, dig holes, find out, what the UGC says, what its circular might mean, and things of that kind. So I'll try and decode that X factor. As in a good classroom, I'll structure my talk in 3 parts. First, about the concrete issue that we are discussing here, the UGC circular, which is being muchly talked about. Second, about the question of university autonomy and social justice in India in general. And third, maybe something abstract about relationship between autonomy and justice. First, the concrete thing. ये जो सर्कुलर आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से, जिसके बारे में आपकी यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम क्या करें, यूजीसी का सर्कुलर है. यूजीसी कह रही है कि 100% मार्क्स वाइवा पे होंगे, एंट्रेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और हमें तो मानना पड़ेगा यूजीसी की चीज को, हम कुछ कर नहीं सकते. और जो जेएनयू का अब तक का डेप्रिवेशन पॉइंट का सिस्टम था, वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स हैं. यूजीसी कह रही है, हम क्या करें. आपकी यूनिवर्सिटी एक बात ठीक कह रही है, और सिर्फ एक ही बात ठीक कह रही है, वो ये कि कागज पे इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री टू कंफॉर्म टू यूजीसी रेगुलेशंस. Especially the UGC has different kinds of things. There are letters, there are recommendations, and then there are regulations. So this is one of the regulations of the UGC which is binding, which is supposed to be binding, although in reality 3/4 of the universities ignore UGC regulations most of the time. मगर कागज पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि रेगुलेशन को मानना जरूरी है, they are correct. But that's the only thing about which they are correct. What does the regulation say? आपने कई बार देखा होगा, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ कुछ उसके रेलेवेंट हिस्सों को, क्योंकि इसमें कोई लंबी छोड़ी मुश्किल की बात नहीं है, कोई ऐसा डीप हर्मेनॉइटिक इंटरप्रिटेशन के सवाल है नहीं इसके अंदर. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट है, बिल्कुल सीधी बात कहती है. I should also say, why does something like this come into being? Is he applying for PhD or something? So we have this University Grants Commission minimum standards and procedures for award of MPhil PhD degrees regulation 2016. इससे पहले exactly इसी नाम का एक और रेगुलेशन होता था जो 2009 का था. ये रेगुलेशन क्यों आए? ये रेगुलेशन इसलिए आए कि देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही थी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ रही थी, और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जिस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही थी, वो हर तरह के नॉर्म्स को वायोलेट करके
पीएचडी डिग्रीज अवॉर्ड कर रहे थे। उनसे आप पूछिए कि आपने कैसे एडमिट किया, सो पता लगा कि बस कह दिया हमारी फैकल्टी ने उसे एडमिट कर लिया। कोई प्रोसीजर नहीं था किसी तरह का, और मतलब होता ये था कि आपको रातों रात बैकडेटेड एडमिशन दे दिया जाता था और उसके 6 महीने बाद आपके हाथ में डिग्री पकड़ा दी जाती थी और कह दिया जाता था हमारी यूनिवर्सिटी से, बिकॉज वी आर ए यूनिवर्सिटी वी हैव अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री टू मिस्टर एंड मिसेस व्हाटएवर, कर दिया। इस तरह की जो बिल्कुल ब्लेटेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसे रोकने के लिए ये 2009 में पहली बार रेगुलेशन आया था। उस रेगुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करके इस बार किया गया था और इसका बेसिक पर्पस ये था कि आपको एडमिशन का कोई प्रोसेस फॉलो करना होगा। You'll have to say we conducted this test, we did some viva, so that they have to be papers. You can be asked what was the basis on which you granted admission, and you cannot you cannot pretend 1 year later that no, we actually had an interview in which we had selected this person. So the idea was to specify a procedure so that there is a paper trail and record of there being an admission process, there being some minimum norms which have to be followed. The second part was making sure that every person goes through some training in research methodology, ensuring that there is a certain minimum period, that load on some teachers for research supervision is not artificially high, and that certain minimum standards are followed by everyone. That's basically the spirit of this circular, and there's nothing wrong with it. Because in so many universities, these minimums were being absolutely violated, and the PhD degree had become a complete joke. I mean, it continues to be a joke in so many parts of the university, but this was a attempt by the UGC to try and introduce some order in this mess. This was revised. Now, what does the revised circular say, the revised notification say for 2016? This is the one your university is using. The regulation says, number one, that first of all, it says that you have to have an admission process. There has to be a standard admission process. It says all universities and institutions deemed to be universities shall admit MPhil PhD students through an entrance test conducted at the level of university institutions deemed to be university. So you have to have an admission entrance process. It clearly specifies, and that's a point we need to remember later, it says the admission shall be based on the criteria notified by the institution, keeping in view the statutory bodies concerned and taking into account the reservation policy of the center state government from time to time. So what does it say? This is the principle being laid out. Principle ये कह रहा है कि आप हर यूनिवर्सिटी की अपनी प्रोसेस होगी। वो प्रोसेस बनाते टाइम यूनिवर्सिटी अपने तरीके से सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपको दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। एक तो यूजीसी का कोई अगर इसके बारे में नॉर्म्स हैं, ओवरराइडिंग रेगुलेशन है, आपको उसे मानना पड़ेगा। दूसरा, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है उसे भी मानना पड़ेगा। The spirit is over and above this you can do what you like. That's a university's autonomous decision. अगर आपकी यूनिवर्सिटी की इंटरप्रिटेशन को माना जाए तो उसके बाद इसके पहले हिस्से का कोई मतलब ही नहीं बनता है। The admission shall be based on the criteria notified by the institution. Your university is pretending as if they have no such scope with them. That's clearly stated. Now let's come to the heart of the matter. 5.4. It says, higher education institutions shall admit candidates by a two-stage process through, number one, an entrance test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus, etc. will consist of the following. Now it says, entrance test shall be qualifying. It does not say it shall be merely qualifying. As it says in the case of UPSC exams वगैरह में clearly कहा होता है, it will be merely qualifying, its marks will not be added in the final score. सरकार को अगर कोई चीज़ कहनी होती है, सरकार इशारे से नहीं कहती, कानून में इशारे से चीज़ें कभी नहीं कही जाती. Everything is spelled out in absolute details in black and white. So अगर उन्हें कहना होता तो वो कहते it shall be merely qualifying and its marks shall not be added for the total score for the merit, for the construction of merit. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कहा गया है, इसका implication ये है कि entrance test के बिना आप admission नहीं दे सकते.
That's the important part of it, and that is the spirit of it. कि entrance test एक written test जरूरी होना चाहिए, ताकि एक written record रहेगा, जिसको बाद में आप ले सकते हैं. यूनिवर्सिटीज ये तो कई बार झूठा बना लेती हैं कि हमने इंटरव्यू किया. एंट्रेंस टेस्ट झूठा बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा. दैट वाज द स्पिरिट, ये रोकने का इरादा था. Then it says an interview viva to be organized by the higher education institution, where the candidates are required to discuss their research areas through a presentation before a duly constituted department research committee. यहाँ पे भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ इसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और कोई चीज कैलकुलेट नहीं होगी. तो यूनिवर्सिटी और उसके आगे बताते हैं कि कितना एक स्टूडेंट, कितने एक प्रोफेसर के साथ कितने स्टूडेंट काम कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो द प्लेन रीडिंग ऑफ द रेगुलेशन इज क्वाइट सिंपल, दैट यू नीड ए फॉर्मल एंट्रेंस सिस्टम examination which must have a component of a written test, which must have an interview. Everything else is left to the institution. This is a straightforward reading. When I read this, I thought, what is this fuss about? This is straight, plain and simple. और इसमें कहीं आपको deprivation point खत्म करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको written test के marks खत्म करने की जरूरत नहीं है. And in any case, all over the country, whichever examinations you look at, whether it's the judiciary or it's the academic bodies, expert committees, everyone has been recommending that the marks for interview should be reduced. सिर्फ आपकी अपनी कमेटी ने नहीं कहा है, पूरे देश में जहां जहां एडमिशन सिलेक्शंस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश हुई है, हर जगह रिकमेंडेशन ये है कि इंटरव्यू के मार्क्स को लिमिट किया जाए. बिकॉज देयर इज अ स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी इज नॉट ए बैड थिंग, बट समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड इन एन आर्बिट्रेरी वे, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट. इससे बचाने के लिए पूरे देश में रिकमेंडेशन हो रही है. तो इसलिए यूजीसी अपने रेगुलेशन में लिख ही नहीं सकती थी चीज़, क्योंकि यूजीसी की अपनी जो कमेटीज़ हैं वो बार बार कह रही हैं कि कैसे हम सब्जेक्टिविटी के स्कोप को कम करें, कैसे नेट के एग्जाम में सब्जेक्टिविटी को कम किया जाए. तो ये तो यूजीसी कह ही नहीं सकती थी कि आप 100% इंटरव्यू पे दे दो. एनीवे, आई वाज इन टू डाउट, मेरे को लगा कि थोड़ा सा इसमें फिर भी स्कोप है. देन आई कॉल्ड अप द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी, बिकॉज आई वाज अ मेंबर ऑफ द यूजीसी, सो ही वाज काइंड इनफ टू पिक माय फोन. And this is on the day you had a meeting in the university. When was that? About maybe 2 weeks ago? 2 weeks ago, JNUSU had held a meeting in Periyar Hostel. मैं उस मीटिंग के लिए आ रहा था और आते वक्त मैंने फिर उनको फ़ोन किया. Because I spoke to Nivedita and there was this, I said, look, this is a straight and plain thing. Where is the scope for doubt? In any case, I called up Professor Ved Prakash, the chairperson of the UGC. I said, you must be aware of this dispute here. The JNU में ऐसा डिबेट चल रहा है. मैंने पढ़ा, मुझे तो लगा कि ऐसा कुछ नहीं है. He said, I'm glad you read it and I'm glad you think so, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ कि इस पे डिबेट हो कैसे रहा है. Isn't it very obvious कि यूनिवर्सिटी को सब कुछ डिसाइड करना है? I said, so let me just get it clear. आप मेरे को ये कह रहे हैं कि JNU के लिए या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि वो 100% मार्क्स वाइवा के लिए दें. Professor Ved Prakash, chairperson UGC, said, of course, वो 10% देना चाहते हैं, 20% देना चाहते हैं, 40% देना चाहते हैं, it's their discretion. I said, and he said, Yogen, in any case, the norm, the principle for this should be who the university wants to teach, what the university wants to teach, and how the university wants to teach is university's own discretion. How do we come into play? I said, fine. एक और चीज़ पूछनी थी. JNU में deprivation points का सिस्टम है, you must know about this. क्या आपके हिसाब से वो सिस्टम उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा? He said, यार फिर तुम बेकार के सवाल पूछ रहे हो. How do we come into picture? हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप रिजर्वेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए. अब हाउ डज इट अफेक्ट डेप्रिवेशन पॉइंट? ये JNU का अपना मामला, करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें, हमारे कंधे पे बंदूक क्यों रख रहे हैं? I said, fine. I said, then what about the number of students that any professor can have? He said, no, on that, this regulation is quite clear. I'm afraid we cannot make any changes there.
नंबर्स फिक्स है, प्रोफेसर के लिए इतना, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इतना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना, दैट इज आवर मैंडेट। और उसमें जब तक ये रेगुलेशन चेंज नहीं होगा, नथिंग कैन चेंज। आई सेड JNU is a research university. He said no, but unfortunately we don't recognize that distinction. This one thing is absolutely clear. So the chairperson UGC said, and he clearly said कि ये चीज compulsory है. He said it has no implication for deprivation point. He said there is absolutely no compulsion about how much weightage is to be given to written or to oral. Just to be absolutely sure, I said, sir, I'm going for a public meeting. Do I have your permission to quote you in a public meeting? He said, yes, of course, you have my permission to quote me. Now, the only thing I did not do was to record conversation. I'm not in the business of recording telephone conversations. But I don't lie, and I am sure he also won't. This is something he told me 10 days ago. After that, I came and spoke in the meeting and made all these points. In any case, what he told me should not matter very much because it's a plain and straight reading of the regulation. कोई खास, कोई deep, नई, different interpretation हम नहीं निकाल रहे. It's a plain and simple thing. So from this I conclude, my friends, that there is nothing special, strange, obnoxious about this UGC regulation. There is something strange, there is something dangerous, there is something obnoxious that's going on, but that's not originating near the ITO. It's probably originating where we are standing. ये जो हो रहा है सारा खेल, ये आपकी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, आपकी यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटीज कर रही हैं, और इसके लिए खामखा यूजीसी और एक रेगुलेशन को बहाना बनाया जा रहा है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी ईमानदार है, और एक यूनिवर्सिटी का काम तो नॉलेज और ट्रुथ होता है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे यूनिवर्सिटी अगर झूठ बोलने लगेगी तो फिर वो क्लासरूम में जाके कैसे बताएंगे कि आपको ट्रूथ, प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, मेथोडोलॉजी और ये सब का क्या होगा. तो कहते हुए बहुत बुरा लगता है, शर्म भी आती है, लेकिन वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है इसके लिए. वैसे आजकल कई लोग कहते हैं झूठ सच वगैरह की चीजों से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए. I just hope JNU has not reached Trump era right now. But this is exactly one of those things. So that's as far as this particular act is concerned, this regulation is concerned. दूसरी मैं बात जो कहना चाहता था, ये क्लैरिफाई करने के बाद थोड़ा सा सीरियस बात मैं कहना चाहता था, वो ये कि not that what I've said so far is not serious, but something which is somewhat long term, unrelated to the current incidents. अगर हम यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी और सोशल जस्टिस के सवाल पे, खास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के सवाल पे सीरियसली सोचना चाहते हैं और रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें जाहिर है कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी पे जो हमला किया जा रहा है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा. हमला सिर्फ इस चीज़ पे नहीं हो रहा है कि JNU की एडमिशन पॉलिसी क्या है, हमला इसमें भी हो रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक सेमिनार में किसे बुला सकती है. मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, उसी दिन जहां रोहित वेमुला के एनिवर्सरी थी, और यूनिवर्सिटी में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था. शायद आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है. मैंने आने से पहले फ़ोन किया कि मेरे को गेट से अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे. अब ये बहुत अनयूजुअल चीज़ें हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें इस सब चीज़ों का विरोध करना होगा. लेकिन ईमानदारी से विरोध करने की पहली शर्त है कि हम इस बात को ईमानदारी से एक्नॉलेज करें कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का इरोजन पिछले 2.5 साल में शुरू नहीं हुआ, ये पिछले 25 साल से चल रहा है, और तमाम तरह की इस देश की पॉलिटिकल फोर्सेस इस क्राइम में हिस्सेदार रही हैं. द इरोजन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, erosion of autonomy of academic institution had already reached pretty low levels by the time I saw it from the UGC, which is between 2010 and 12. This is Congress regime, not BJP regime. The manner in which university autonomy was being pretty amazing, pretty low.
और यहां ईमानदारी से ये भी, और खास तौर पे जेएनयू में बात जरूर कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करने में बीजेपी ने खैर हद क्रॉस कर दी है, कांग्रेस ने किया था, और लेफ्ट को भी जब जब मौका मिला है लेफ्ट ने यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमीज को बर्बाद किया है. दिस इज द ट्रूथ, वी मस्ट स्पीक इट हियर. इन वेस्ट बंगाल the record of the left front governments in respecting any university autonomy is absolutely shameful. इस बात को, सच को, अच्छा बुरा जो भी है, हक, ये सच है, सब सच को हम सामने रखें. अगर हम हर सच के बारे में बात कर सकेंगे तो हमारी हिम्मत होगी आज जो हो रहा है उसका विरोध करने की. अगर हम आधा सच बोल के आधे को दबा के रखना चाहेंगे तो हिम्मत नहीं. मोदी का मुकाबला आप अर्ध सत्य से नहीं कर सकते, आप उसको पूरे सच से उसका मुकाबला करें. हम यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यूजीसी की ऑटोनॉमी की बात करते हैं. मैं एक अनप्लेजेंट चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं. जो आज यूजीसी के चेयरमैन है, जिन्होंने उस दिन मुझसे फोन पे बात की, उनकी हकीकत तो खैर ये है कि अगर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी का फोन आ जाता है तो वो खड़े होकर रिसीव करते हैं उस फोन को. मैं सच बता रहा हूं, मतलब ये बिल्कुल आंखों से देखी हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूं. ये जॉइंट सेक्रेटरी का फोन आ जाता है तो मतलब जॉइंट सेक्रेटरी क्या, मतलब वो मेरे से भी जूनियर होता होगा बैच में, मुझसे 2-4 साल जूनियर जो बच्चे हैं वो आजकल जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट द एज एज मच. Joint Secretary of the University of Ministry of Education, who looks after UGC, should be a bureaucrat who's there to clear your files on time. He was already calling the shots. He was deciding things. And the UGC chairman was saying, yes, sir, this is 5 years ago. उससे पहले के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं. एक किताब सोशल जस्टिस पे है. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप जाके उस किताब का डेडिकेशन देखिएगा, किसको डेडिकेटेड है वो किताब. कोई बहुत प्राइवेट बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बंद कमरे में देखी हुई चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ. UGC chairman has dedicated his book to the man who appointed him to become the UGC chairperson. ये ऑटोनॉमी है, ये सोशल जस्टिस है. उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि वो आदमी बैठ के अपनी चेयर पे कोई भी ईमानदारी का फैसला लेगा? जब उस मिनिस्टर का पोता आके उसको कहेगा, ग्रैंडसन ये कर दीजिए, फलां को डिग्री दे दीजिए, फलां को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दीजिए, इसको काट दीजिए, तो वो मानेगा नहीं उसकी बात. That's actually exactly what happened at that time. I'm not imagining things. So university autonomy has been compromised, very seriously so, for quite some time. And the unpleasant truth is that university communities from all over this country have not been able to stand up to it. So I speak about political parties. And as a former teacher, someone who taught and worked in this higher education establishment, I must say we should also take some part of the blame. Autonomy is a two-way affair. It's granted from top and it's demanded and snatched from below. Did we fight for it? जब लेफ्ट फ्रंट बंगाल में ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बना रहा था जिन्हें टीचर नहीं होना चाहिए था यूनिवर्सिटीज में, कितने ईमानदार एकेडमिक्स ने खड़े होकर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था? करना चाहिए था ना. जो बैठ के ज्योति बसु की हेगियोग्राफी लिख रहे थे उनको वाइस चांसलर बनाया गया था उस वक्त. हम आप चुप रहे उस टाइम, नहीं बोले ना. कितने लोग बोले थे उस टाइम? यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज ने क्या किया? इसलिए अगर आज हम इसे रिकवर करना चाहते हैं तो मेरा इतना ही कहना है, लेट अस बी कंसिस्टेंट, let's speak about all such violations, and let us start practicing that autonomy and respect for others and differences whenever we get that tiny bit of a chance. अगर हमारे पास दुनिया की किसी भी जगह राज हमारा नहीं चलता, लेकिन 9:30 बजे के बाद जेएनयू की मेस के अंदर हमारा राज चलता है, तो कम से कम वहीं ऑटोनॉमी हम प्रैक्टिस करें. उस वॉइस को सुने जिसे बाकी लोग सुनने को तैयार नहीं है, जिससे हम डिसएग्री करते हैं उसको जगह दें, उसकी बात आराम से सुने, उसको हूट ना करें,
उसको उड़ाएं ना, उसकी खिल्ली ना उड़ाएं, उसकी बात सुने। ऑटोनॉमी इन सब चीज़ों से शुरू होती है, रेस्पेक्ट दूसरों को करने से शुरू होती है। और जब जब लेफ्ट प्रोग्रेसिव सेकुलर लोगों को इस देश की कुछ इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा मिल जाता है, वो मिल जाता है, हर 5-7 साल बाद लेफ्ट प्रोग्रेसिव लोगों को 2-4 इंस्टीट्यूशंस उनके हिस्से आ जाती हैं। देश में डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें प्रोग्रेसिव लोगों को भी 2-4 चीज़ें मिल जाती हैं। क्या प्रोग्रेसिव लोग उस वक्त इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के मॉडल सेट कर सकते हैं? आज तक तो नहीं किया है, लेकिन अब वक्त है, करना चाहिए। इतना तो हो कि जहां प्रोग्रेसिव लोगों को, सेकुलर लोगों को रोल मिला, वहां उन्होंने पार्टीजन तरीके से काम नहीं किया, वहां उन्होंने सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बैठाया, वहां उन्होंने डिफरेंट व्यू पॉइंट को जगह दी, वहां उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी मांगी। मैं बहुत अनप्लेजेंट बात तो नहीं कर रहा था। इतना साफ हो कि आगे बता, वहां इतना तो कम से कम हो कि वहां ये अपनी ऑटोनॉमी छीनेंगे, मांगेंगे, और अपने से नीचे जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं उनकी ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट करेंगे। ये काम के लिए हमें अगली सरकार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हम सब अपने अपने डोमेन में छोटे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि जिस ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्पेसेस में, उस ऑटोनॉमी को हम माने, उस ऑटोनॉमी को हम मांगें, उस ऑटोनॉमी की हम अपने स्फीयर में रेस्पेक्ट करना शुरू करें, और ये काम हम आज कर सकते हैं। फाइनली एक जनरल बात कहना चाहता था, वो ये कि ऑटोनॉमी और जस्टिस का रिलेशनशिप क्या होता है। हम सब की एक प्रॉब्लम होती है, हम मान लेते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ मुझे अच्छी लगती हैं, दे मस्ट बी हार्मोनियस। मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे ही होंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। हमें दो चीज़ अच्छी लगती हैं, उनमें एक टेंशन का रिलेशनशिप होता है, हो सकता है। Autonomy and social justice happen to be those two things. Please remember, if you forget the particular instance that we are talking about, in most cases, advocates of social justice have demanded, continue to demand, and I have been one of them who said universities should not have autonomy. Why? Because the track record of the university and higher education institutions in this country in implementing reservations has been terrible. जब जब इस देश की जिस भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को कोई भी मौका मिला है रिजर्वेशंस को फ्लाउट करने का, उन्होंने जितना मौका मिला है उससे दुगना फ्लाउट जरूर किया। I know of universities which have not implemented reservation policy for decades. टीचर रिजर्वेशंस को 90s तक, 2000s तक यूनिवर्सिटीज ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। आज भी इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंप्लीमेंटिंग ओबीसी रिजर्वेशन, इफ यू सिंपली लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, you would realize that OBC reservations for teachers has been by and large flouted। ऐसा नहीं हुआ है, और इसलिए ऑटोनॉमी के, इसलिए सोशल जस्टिस के एडवोकेट्स ने बार बार कहा है यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी मत दीजिए। इस सवाल पे यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट डिजर्व ऑटोनॉमी। रिकॉर्ड हैज बीन शेमफुल। सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर दैट ऑटोनॉमी इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑटोनॉमी इन विच स्फीयर, फॉर व्हाट पर्टिकुलर पर्पस, and what have you done to deserve it? All these things matter. And similarly, social justice is a value, is a virtue, is a constitutional value, but there are times when we carry it to a fault. Social justice, मुझे कई बार महसूस होता है
और ख़ास तौर पे पिछले 5-7 साल की एकेडेमिया में, पिछले 10 साल की एकेडमिक डिबेट्स में मुझे लगता है कि हमारी डिबेट्स में सोशल जस्टिस को हमने ऐसा एक एब्सोल्यूट वर्च्यू बना दिया है कि उसके आगे आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। दैट्स डेंजरस। मैं ये सब बातें बिना कहे आराम से भाषण दे के जा सकता था, बट आई थिंक when we are discussing something so critical, when we are in the midst of a struggle, it's only complete honesty that can carry us forward. It is our ability to speak, it's our ability to speak full truth. I must confess that I am one of those old-fashioned persons who believe in something called truth. And I think it's only our ability to speak complete truth to the best of our ability. Truth is always contextual. Truth is always the product of a conversation. And it respects those language games. But within that language game, there is something called truth. And it is only our ability to speak complete truths. It's our ability to recognize difficulties and unease and tensions in our own argument that can give us the strength to take on one of the biggest trick that is being played on this nation. We are in the midst of a very unusual phase, not just in the history of JNU, but in the history of this nation. मुझे बार बार महसूस होता है जैसे इमरजेंसी के वक्त को हम याद करते हैं, और जैसे इमरजेंसी ने अंत में इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया। जब हम इमरजेंसी से बाहर निकले, बीच में जैसा भी महसूस होता था, इमरजेंसी से बाहर निकले तो इस देश की डेमोक्रेसी मजबूत हुई। उसी तरह से मुझे महसूस होता है आज ये जो मोदी राज है, इस दौर से जब हम गुजरेंगे, इसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे, हम एक बेहतर और सेकुलर हिंदुस्तान बन के बाहर निकलेंगे। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम खुद उन वैल्यूज के लिए ईमानदारी से I think that was just the right signal I was waiting for. So this was a final signal कि बहुत हो गया, आप तो बंद करो. So thank you very much for listening to me. It's only by being honest that we can pursue our struggle. Thank you very much. So we'll take couple of questions before we move on to the next speaker. मतलब जैसे जो हमारा इंक्लिनेशन होता है या जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को। तो मैंने जो आपकी बातें सुनी हैं, अगर आप जो स्वराज इंडिया से नहीं जुड़े होते या स्वराज अभियान से नहीं जुड़े होते, आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता, तो शायद मैं पूरे तौर पे मान लेता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने बताई हैं उसका और आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ भी है, तो मैं उस मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे चीज़ों को कितना सही मानूँ, कैसे करूँ, तो मुझे हमेशा डायलेमा होता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब मैं जब उन लोगों को सुनता हूँ तो उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, और लेकिन क्योंकि ये डाउट पता नहीं कैसे मेरे में आता है, तो इस डाउट से कैसे निकला जा सकता है? मतलब थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन ये डाउट। मैं क्वेश्चन को पहले रिपीट कर दूं। आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी बातें तो सही लग रही हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स भी तो करते हो, तो आपकी बातों का कुछ इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी होगी, किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट है, तो इसलिए थोड़ा मन में शक पैदा होता है ना? इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल। देयर इज, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो भी एक्सीडेंट ऑफ लोकेशन है, आप जहाँ खड़े हैं, वो आप सच को कैसे देखते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है, और आपको किसी की लोकेशन को लेके ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये आदमी जो बात कर रहा है, इसकी बात को मानूं इससे पहले मैं ज़रा एक एक्स्ट्रा फिल्टर से इसको लगाऊंगा, चूँकि ये पॉलिटिक्स में है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरा कहना है कि आप हर चीज़ पे लगाइए ये फ़िल्टर, चूँकि ये टेलीविज़न में काम करते हैं,
चूंकि ये वाइस चांसलर हैं, चूंकि ये कॉरपोरेट हाउस में काम करते हैं, हर एक के बारे में ये फिल्टर जरूर लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये फिल्टर लगाने के बाद सवाल हम क्या पूछेंगे? सी द पॉइंट अबाउट ट्रूथ इज दैट इट शुड नॉट डिपेंड ऑन, initially you may be inclined more to believe someone, less inclined to believe someone else. But in the last instance, that person has to offer arguments and evidence. And finally, you should believe someone not by his or her location, but by the arguments and evidence that they produce. तो मैं कहूँगा कि आप अच्छा कर रहे हैं. By suspecting me, you are actually doing me a favor. अच्छी बात है, सस्पेक्ट कीजिए, सबको सस्पेक्ट कीजिए. वैसे आपको याद है इंस्पेक्टर मातादीन ने भी ये कहा था, ध्यान नहीं आपका? हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे. तो चांद पे क्राइसिस हो गया, चांद पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई. सो उन्होंने यूपी से इंस्पेक्टर मातादीन को बुलाया. तो इंस्पेक्टर मातादीन गए और वहाँ उन्होंने कहा क्या हो रहा है चांद पे. उन्होंने कहा पिछले मतलब चांद पे प्रॉब्लम ये हो गई, पिछले 1 महीने में चांद में 2 चोरियों की वारदात हो गई. माताजी ने कहा हमने तो बड़े बड़ों को सेटल कर दिया. सो वो बाहर निकले थाने से और सड़क पे 2 लोग जा रहे थे, उनको पकड़ लिया. उन्होंने कहा कैसे पकड़ लिया आपने? उन्होंने कहा मैंने चोरी के आरोप में पकड़ा है. उन्होंने कहा पर आपको कैसे पता? पता नहीं, मैं शक कर रहा हूँ सिर्फ इस पे. तो कहानी यह है कि इंस्पेक्टर मातादीन ने जाके चांद में पुलिस को शक करना कैसे सिखाया. तो आप भी शक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शक कीजिए, ये काम आएगा जिंदगी भर, ये काम आएगा. लेकिन शक करने के बाद ये पूछिए कि प्रमाण का. हर एक जो किताब छपती है उसको भी शक कीजिए, जो जिस तरह की अथॉरिटी और लोकेशन है सबको शक कीजिए, लेकिन आखिर में प्रमाण मत. किसी की बात पे यकीन भी इसलिए नहीं कर लीजिए कि बहुत भोले भाले हैं, बड़े ठीक ही लगते हैं, और किसी को रिजेक्ट भी ना कर दीजिए कि ये भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ है, जो भी है. प्रमाण मांगिए, आर्ग्यूमेंट मांगिए. इन द लास्ट इंस्टेंस इफ वी कैन डेवलप दैट कैपेसिटी, then nothing can shake our truths, and any politics that's anchored in truths is probably the strongest politics. That would not be condemned, that would not be revoked. It means के फैकल्टीज़ के अपॉइंटमेंट को लेकर के अब तक तो बहुत बड़ा इशू चल ही रहा है. हर जगह गेस्ट फैकल्टीज़ है और एक तरफ आप सीट के कैप को कम कर रहे हैं. तो फिर किस तरह से आप क्वालिटी और क्वांटिटी का जो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है उसे कैसे आप कंप्लीट करेंगे? उसका काम तो ये है कि सीट को बढ़ाया जाए और ज़्यादातर लोग रिसर्च करें, लेकिन इसके बजाय क्या कर रहे हैं आप, सीट को कम कर रहे हैं. तो किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं? वहाँ आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं आप बता दूं क्या वो कह रहे हैं. यूजीसी के जो इसमें नोटिफिकेशन रेगुलेशन में क्लॉजेस हैं, उसमें एक क्लॉज कहता है एक प्रोफेसर के साथ सिर्फ 8 पीएचडी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ 6 और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ 4. ऐसा कुछ नियम है. हालांकि ये मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसका 3 लेवल से क्या रिलेशनशिप है. किसी भी टीचर के पास कितने रिसर्च स्टूडेंट हो सकते हैं उस पर कोई लिमिट होना चाहिए. आई पर्सनली बिलीव कि उसके बाद आप जस्टिस नहीं कर पाते. अगर 20, 40, 50 स्टूडेंट हैं आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे. तो कोई एक लिमिट है दैट लुक्स लाइक ए रीजनेबल थिंग टू मी. वो लिमिट आपके रैंक पे डिपेंड करती है. मुझे समझ नहीं आया. मैं कई बार मजाक किया करता था यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी के पास अगर बहुत कपड़ा आ जाए और उसको बांटना हो तो क्या करेगी यूनिवर्सिटी? कहेगी प्रोफेसर्स को फुल स्लीव्स का शर्ट मिलेगा, रीडर्स को हाफ स्लीव्स का शर्ट मिलेगा. ऐसा कुछ चलता है. ये मुझे समझ नहीं आया क्यों होगा. बेचारे लेक्चर्स का क्या होगा आप सोचिए. तो ये तो समझ नहीं आया. बट दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ए लिमिट टू हाउ मेनी पीएचडी स्टूडेंट्स यू शुड बी हैंडलिंग. लुक्स लाइक ए रीजनेबल थिंग टू मी. और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये कहती है तो उसमें योर यूनिवर्सिटी इज नॉट टू ब्लेम. देयर इज ए यूजीसी रेगुलेशन व्हिच इज बाइंडिंग. अब जो आपने सवाल उठाया बहुत गहरा और असली सवाल उठाया कि यह बहुत अच्छा किया आपने कहा कि एक टीचर के पास इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए. लेकिन हुजूर ये भी कहिए कि एक डिपार्टमेंट में इससे कम टीचर नहीं होने चाहिए. इतने टीचर्स हम देंगे, उनकी सैलरी भी दिया करेंगे. ये हमारी असली हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि हम एक तरफ के स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, लेकिन वही द सेम बॉडी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फंड योर यूनिवर्सिटी, to give resources to the universities all over the country. Sitting here in JNU, we have no idea of the situation in which state universities function. आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं अपनी पहली डिग्री किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से करके आए हैं.
आप जानते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां डिपार्टमेंट में एक टीचर होता है, 2 टीचर होते हैं, 3 गेस्ट टीचर हैं, उससे डिपार्टमेंट चल रहा है। जो पोजीशंस हैं कभी फिल नहीं की जाती, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी नहीं होती, किसी को टीचर्स को बैठने के लिए कमरा नहीं होता, उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके कोई नॉर्म्स नहीं है, उसमें कोई मिनिमम नहीं है, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। The entire higher education system is being sought to govern through these absolutely unregulated appointments. And who is to blame for that? The UGC. And through that, the higher education setup of this country, which doesn't give them funds. आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। उसके लिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करूंगा, वो दोष, वो जिम्मेवारी आपकी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। और वैसे भी देश की बाकी यूनिवर्सिटीज से तुलना करें तो आपकी यूनिवर्सिटी तो बहुत 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 प्रिविलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ टीचर्स हैं डिपार्टमेंट में, अच्छे टीचर्स भी हैं। बाकी देश में तो ये हालत है, बाकी देश की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं हैं। दिस इज द सैड ट्रूथ ऑफ दिस कंट्री, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर फंक्शनिंग इन दिस कंट्री by earning money through correspondence courses. इन बातों पे चर्चा नहीं होती। यूनिवर्सिटीज हजारों लोगों को भर्ती करती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का पैसा लेती हैं, उससे लोगों की तनख्वाह देती हैं, उस पर कोई नियम नहीं है। So why can't we all, and that's my final thought, that you see for far too long we have waged battles which are defensive battles. हमारे कितने आंदोलन हैं जिनका नाम बचाओ होता है, नर्मदा बचाओ, फला चीज़ को बचाओ। अब मेरा कहना है बचाओ वाले काम छोड़ दें, अब हम कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लें और कुछ प्रोएक्टिव एजिटेशंस करें। हम ये क्यों नहीं कहते कि इस देश की हर यूनिवर्सिटी में मिनिमम स्टैंडर्ड्स के नॉर्म आपने बना दिए, मिनिमम फैकल्टी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्टूडेंट एंटाइटलमेंट क्या होने चाहिए, मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, इसका भी एक रेगुलेशन लाइए। And we should all fight for that kind of unity. Under Kalyani University in West Bengal. I was teaching political science. I was a temporary teacher, part-time teacher, and I was the head of the department. And what he's And it describing, continued 2 years. and what he's describing is not an exceptional situation. Most of us have no idea of the conditions under which state universities work in this country. उस पर कुछ नहीं करते हैं और बैठे बैठे सिर्फ रेगुलेशन बनाते हैं कि ये लिमिट वो लिमिट। So let's really think of a proactive agitation where we demand what is the bare minimum before a university can be called a university, and who is to be held responsible if university fails to reach those points. For your kind words. आपने सर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की जो बात करी, ऑटोनॉमी देनी भी चाहिए और थोड़ा नहीं भी देनी चाहिए, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया रिजर्वेशन की पॉलिसी कई सारी यूनिवर्सिटियां नहीं अच्छे से लागू करती हैं, और देश में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि मनमाने ढंग से प्रशासन को चलाते हैं। तो सर मेरा यह कंक्लूजन ये है कि इस ऑटोनॉमी के क्वेश्चन में मतलब व्हाट इज़ द वे आउट इन दिस, कितना ऑटोनॉमी दें, कितना अच्छा कि आपने पूछा है, क्योंकि मेरी बात इनएडिक्वेट रह गई थी। यू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट इट। जी, उससे रिलेटेड है। जी, इसमें ऐड करना है बता। कि ओबीसी का रिजर्वेशन ये टीचर की नियुक्तियों में क्यों नहीं, प्रोफेसर की नियुक्तियों में क्यों नहीं लागू होता? थोड़ी जोर, थोड़ा आवाज से पूछे। इनका सवाल ये है कि ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू होता। वो फॉर्मली लागू होता है, रियलिटी में उसको एस्केप कर जाते हैं। जो ऑटोनॉमी से भी रिलेटेड है, मतलब ऑटोनॉमी की वजह से लोग फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म का सहारा लेके वो ओबीसी के टीचर्स को नहीं लाते, या उनमें कोई टैलेंट नहीं होता, इस प्रोजेक्ट नहीं होता, ये सारे सवाल का सवाल। So the question, I think it enables me to complete what I had left sort of hanging. आपने कहा ऑटोनॉमी होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। अब कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं यहाँ। पहला तो ये है, ऑटोनॉमी के नाम पे आप कुछ बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं कर सकते, रिजर्वेशंस बीइंग वन ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। और ये वाला भी जो रेगुलेशन है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये कहे कि हम रिजर्वेशंस लागू नहीं करेंगे, उसकी जगह डेप्रिवेशन पॉइंट लाएंगे, तो ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि इन एडिशन टू रिजर्वेशन
हम deprivation points भी use करेंगे, then there should be autonomy. तो मेरे ख्याल से कुछ domains होने चाहिए. दो तीन चीज़ मुझे समझ आती हैं. पहला तो autonomy को कुछ domains बनाने होंगे. एक यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाना चाहती है, इसमें autonomy होनी चाहिए. Including autonomy to be stupid, including autonomy to be irrelevant. I think ये जो बार बार होता है बैठ के कि let us improve the quality of all universities, उनके लिए ये syllabus बना दो, ये चीज़ compulsory बना दो, और ये सिर्फ right wingers नहीं करते, सिर्फ मोदी जी नहीं करते, उन लोगों को तो एजुकेशन की समझ ही बहुत कम है, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं नहीं सचमुच. इनफैक्ट right wing has by and large been somewhat harmless in education in this country because they don't know what is education. And वो बत्रा जी को पकड़ लाते हैं, कभी इसको पकड़ लाते हैं, वो तो वो काम करते हैं. But lots of left wing progressive people have also given in to this temptation कि हम सब की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, सिलेबस प्रेस्क्राइब कर देते हैं, बुक्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं. I personally think it doesn't work. If a university wants to be stupid, if a university wants to retain courses which are 20-year-old, if a university wants to remain irrelevant, they should have the autonomy to be so. जाइए, लोग बच्चे आपके पास पढ़ने आना बंद कर देंगे, बढ़िया, ठीक है, remain where you want to. Syllabus is something where universities deserve autonomy. And please remember, autonomy always means autonomy to make mistakes, freedom to make mistakes, freedom to be wrong. Unless there is a freedom to be wrong, there is no freedom. So syllabus में होनी चाहिए. Recruitment के कुछ minimum norms में autonomy नहीं होनी चाहिए. क्योंकि उस रिक्रूटमेंट का पैसा सरकार दे रही है. जो सरकार पैसा दे रही है वो ये ज़रूर कह सकती है कि आप यूनिवर्सिटी टीचर को रिक्रूट करेंगे तो उसकी इतनी डिग्री होनी चाहिए, इतने कुछ नॉर्म्स होने चाहिए. वो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे नॉर्म्स को इतनी बार वायलेट किया गया that there is really very little option except to be somewhat mechanical and insist on some norms. होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा, सोशल जस्टिस रिजर्वेशंस, इसके बारे में ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ बिल्कुल इंसिस्ट किए जाने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को ऑटोनॉमी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर देना चाहिए. एक और बात मैं कहूँगा जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, मगर सोचिए आप इस पर. Every institution should not be given the same degree of autonomy. You have to earn your autonomy. अगर आप काम करेंगे, ये होगा. ये it's controversial, and I know in a somewhat progressive teachers' politics, what I'm saying would be, I would be blown apart for saying this. लेकिन सच है, जो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा काम करे, बेहतर काम करे, उसको ऑटोनॉमी उतनी ज़्यादा मिलनी चाहिए. Some way of ranking of universities has to be worked out. This is something which most progressive movements have resisted so far. Lekin you have to make a distinction between, let us say, research-oriented universities and only teaching universities, better universities and worse universities, and some of the better institutions should be given more autonomy on the condition that they perform well and earn more autonomy. It's very difficult to operationalize and it can also be misused. But I really see no way other than that. Thank you very much.